others? How would you look at it? The Cyprus visit of Prime Minister Modi is, I think, extremely important. One, it indicates to Turkey that India is also capable of encircling Turkey. We have good relations with Greece. The India-Middle East corridor is terminating there in Europe. Greece and Turkey are not the best of friends. Similarly, now we are enhancing our relations with Cyprus. And Cyprus and Turkey are also not good friends. So India is paying back, in a way, Turkey in its own coin. सर, प्रधानमंत्री 3 देखिए, प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है काफ़ी मायनों में, परंतु मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा जो मायना है वो ये दिखा रहा है टर्की को कि हम भी आपके घर के पीछे अपना किला खड़ा कर सकते हैं एक तरह से, राइट। हम भी आपको सर्कल कर सकते हैं। उधर भारत के रिश्ते ग्रीस के साथ अच्छे हैं। जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है वो ग्रीस में ख़त्म हो रहा है, यूरोप में, और फिर आगे बाय लैंड जा रहा है। ग्रीस और टर्की के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। तो टर्की के आसपास के इलाकों में जिन देशों से टर्की को दिक्कत है वो देश हमारे साथ अब दोस्ती करने में उत्सुक हैं। तो टर्की को भी मैसेज जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है हम उसको उसी तरह का जवाब दे सकते हैं। Israel plan in recent days to kill Iran's supreme leader Ayatollah Ali. See, if Trump vetoed an Israeli plan to kill the Israeli leader, I think that is definitely a very good move. That is a right move. Now, we do not know exactly if there was such an Israeli plan or is this a creation somewhere in the media. But in case it was, this would be a very sensible move by President Trump, because that would set off even a further more conflict and raging fires in the Middle East. वो लेके सर वो लेके आए हैं। ये जो खबर है कि ट्रंप ने इजरायली प्लान को वीटो किया था जिसमें इजरायली लोग आयतुल्ला खामेनी को मारने के लिए तैयार थे, अगर ऐसा है तो मेरे विचार से अच्छा डिसीजन, बहुत ही सेंसिबल सद्बुद्धि वाली कदम है अमेरिका का, ट्रंप का। अगर ये होता, और कह नहीं सकते आगे ना हो, बट अगर ये होगा तो मिडिल ईस्ट में जो आग इस समय लगी हुई है और भड़केगी भड़केगी भड़केगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आई कोट इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रम्प सेज इजराइल एंड ईरान will make a deal also, claimed by the American president. See, the American president does make claims, but it is not necessary that his interpretation or his understanding of things is the same as what we in India have of our stance regarding Pakistan. Yes, America was involved in the discussions. Yes, President Trump may have said some of the things he said, but that does not mean that we come under pressure on that. Okay, in discussions, yes, sure, they can be frank and free discussions. Remember, in diplomacy is the best way to describe that the discussions were such that we both did not agree, but there was a discussion. So President Trump can take claims on those, that's up to him. अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो क्लेम किए, देखिए, ट्रंप जो बयान दे रहे हैं भारत पाकिस्तान को लेकर के, इनकी सुलह मैंने कराई, वो ट्रंप की सोच है, उनका विचार है, उन्हें कहने दीजिए। यस, अमेरिका इन डिस्कशंस में इन्वॉल्व था, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी। इंडिया हम जो मैसेज दे रहे थे वो पाकिस्तान को कन्वे कर रहे थे। अब इस बीच में ट्रंप अपने विचार से कुछ कहना चाहें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बात सुन करके वो जो कह रहे हैं वही करेंगे। देखिए, जब डिस्कशन होती है तो आप कुछ भी कहें, मैं कुछ भी कहूं, पर ये थोड़ी मैं आपकी हर बात मानूंगा। और डिप्लोमेसी में एक टर्म होती है, बाद में प्रेस रिलीज निकलती है, द डिस्कशंस वर फ्री एंड कैंडिड, फ्रैंक एंड कैंडिड। उसका सबसे पहला मतलब यही है कि डिस्कशन हुई, जरूरी नहीं है उन पर एग्री करें जो बातें हुई। since the chapter came out of people killed in Israel attack on Iran, in which over 90% are civilian, claimed by Iran. How would you look at it? Unfortunate, but it will go on. We do not know when this whole conflict will stop. It may pause, but it will go on. As of now, it seems that Israel is continuing and Iran is also hitting back. It has all the potential of expanding into wider Middle East
conflict. Israel has blown up some of Iran's largest gas and oil fields. Iran could start now blowing up in the region of Emirates, Qatar, Saudi, paying back. The idea of Israel is to draw in America into the conflict. The objective of Israel to destroy the nuclear facilities of Iran, Israel cannot do. It does not have the bombs of that capacity, that size, and neither does it have aircraft to deliver. So to eliminate, destroy Iran's nuclear facilities, Israel needs America. की मृत्यु हुई है जिसमें 90% से ज़्यादा इनोसेंट सिविलियंस थे। ईरान ने कहा है 1200 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। देखिए, ईरान इजराइल में जो हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर ये तो होना ही था, कई वर्षों से होना ही था। इजराइल बहाना ढूंढ रहा था, खासकर नेतन्याहू बहाना ढूंढ रहे थे, और उन्हें था भी कि ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल हमें खत्म करना है। अब जो ये जंग छिड़ी पड़ी है, ये जंग अगर इसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ानी है, उसमें अमेरिका को आना पड़ेगा। उतने बड़े बॉम्ब और उतने बड़े एयरक्राफ्ट इजराइल के पास नहीं है जो कि ईरान के माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको उड़ा दे। तो जब तक अमेरिका नहीं आएगा तब तक यह जंग इजराइल की ऑब्जेक्टिव नहीं होती। तो इजराइल इस समय पूरा प्रयास कर रहा है कि अमेरिका को इन्वॉल्व करे। वो हुआ तो ईरान फिर मिडिल ईस्ट में और जगह